सो आज का टॉपिक ये पावर ऑफ थिंकिंग। कोई कुछ जानता कुछ कहना चाहता कुछ इसके बारे में पावर ऑफ थिंकिंग ਆਪਾਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਆਏ ਆ ਔਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈਗਾ ਮਨ ਕੇ ਜੀਤੇ ਜੀਏ ਤੇ ਮਨ ਕੇ ਖਾਣੇ ਖਾ ਰਾਈਟ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਰਡਸ ਹੈ ਇਹ ਕੁਝ ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਮੈਂ सोचा ये मैं ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪਾਵਰ ਆਫ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ 4 ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾਵਾਂ ਇਹਨੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਇਹ ਕੁਝ ਨਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ है तो मैं यानी कि मैं 25 kg वेट ਇਹ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਨੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦਿਲ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਦੋਨੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਆਫ ਥਿੰਕਿੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਮ ਚੀਜ਼ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਐਰੋਪਲੇਨ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅੰਤਰਿਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲ ਗ੍ਰਹਿ ਵੱਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲਾਈਫ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਬਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਪਾਵਰ ਆਫ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੈ नहीं तो पहला एक मिनट तू सोच के देखो कभी माइंड के विचार एक आइडिया आया कि यार कोई और दुनिया भी होगी ब्रह्मांड कितना बड़ा है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਸਤੇ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਵਰ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਂਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ दो वाइब्स होंगी नेगेटिव वाइब्स एंड पॉजिटिव वाइब्स सो जो साडी पॉजिटिव वाइब साडी पॉजिटिव थिंकिंग होती है तो ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਸਾ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਲੀਆਂ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸਨ ਹੈ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਬੋਲਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਚਿਨ तेंदुलकर ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲਿੰਗ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਵਾਂ ਸਚਿਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਫੁਲ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੋਡ ਆਫ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲ ਸਿੱਟ ਦਵਾਂ ਬੈਸਟ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਸਿੱਟ ਦਵਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਟ ਪੈ ਜਾਣੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਦੇ ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਵਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਇਹਦਾ ਪੱਥਰ ਦਾ ਇਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨਾ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਥਿੰਕਿੰਗ ਲੈ ਕੇ अपना बेस्ट दवांगा फिर क्या होगा इंसान तो वही है मैं भी हुई बोल भी हुई है प्लेयर भी सामने हुई है बट इस बार क्या हो गया इस बार जो मेरी थिंकिंग और चेंज हो ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਵੈਂਟਸ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸਕਸੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਾਂ ਐਲਨ ਮਸਕ ਦਾ ਨਾਮ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਬਸਤੀ ਵਸਾਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹਦਾ ਆਪਾਂ ਆਮ ਟੂਰਿਸਟ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਮ ਟੂਰਿਸਟ ਵਾਂਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰਾਂਗਾ ਹਜੇ ਦੂਰ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਅੱਜ 2025 ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੋਣਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਨਾ उन्हें आइडिया लिखता पावर ऑफ थिंकिंग जरूरी नहीं ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਿੱਚ ਕਰੀਏ ਜੇ ਆਪਾਂ 네ਗੇਟਿਵ ਵੱਲ ਵੀ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਕੈਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬ੍ਰੇਨ ਪਾਵਰ ਆਪਾਂ ਲੋਕੀ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਹਜੇ ਇੱਕ ਸਕੈਮ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ 255 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਆਊਗਾ ਫ੍ਰੀडम ਮੋਬਾਈਲ ਸੁਣਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ
255 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ। ਹੁਣ ਉਹ 255 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਾਈ, ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਤੇ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਸਭ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ 255 ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਨੇ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਾਈ। ਐਂਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਆਇਆ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਆਪਾਂ ਕੀ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ 255 ਵਾਸਤੇ ਕੌਣ ਕੇਸ ਕਰੇ? ਜੇ ਆਰਟੀਆਈ ਦਾ ਲਈ ਤਾਂ ਵੀ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਤੇ ਛੱਡੋ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, 255 ਹੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਕੈਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੋਰਮਲ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ 2000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ 1000 ਵੀ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ। ਜਦੋਂ 4G ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ 255 ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ 1000 ਲੈਣੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਸਟਮਰ। ਪਰ ਜੇ 1000 ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਸੀਗਾ ਕੇਸ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ 1000 ਮੰਗਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ 1500 ਮੰਗਦੇ 2000 ਮੰਗਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਕੇਸ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 255 ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਦੇ ਲਓ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਲੈ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਨੋ ਡਾਊਟਸ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਨੋ ਡਾਊਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਡਾਟਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਦਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਵਗੈਰਾ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਹ ਸੀ। ਬਸ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਪਾਂ ਟੀਵੀ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਾ ਮਨ 'ਚ ਠਾਣ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਕਰ ਵੀ। ਇਨ ਸ਼ੋਰਟ ਮੈਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪੱਕਾ ਮੰਨਦਾ ਆਪਣੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਜਿੰਨੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਾਈਬਸ ਸੀ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਖੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਪਰਸਨ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹੀਏ ਤਾਂ 70% ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੰਦੇ। ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੈਡੀਕਲ ਲੈਣ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਨਾ ਤੇਰੀ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ। ਮੈਂ ਕਮਰਸ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਲੈ ਮੇਰਾ ਚਾਚੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਉਹਨੇ 3 ਵਾਰ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀਏ ਦੇ, 3 ਵਾਰ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਾਕਾ ਐਡੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸੀ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਐਵਰੀ ਪਰਸਨ ਇਨ ਦਾ ਵਰਲਡ ਇਜ਼ ਯੂਨੀਕ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ਕਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਚ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਟਾਰਗੇਟ ਵੀ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਲੱਕ ਵੀ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਾਡਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕਿੰਗ ਸੇਮ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। हर पर्सन यूनिक है, चाहे हर एक एंगल से यूनिक है। आप किसी के बारे कोई भी नेगेटिव राय ना तुसी आप बनाओ ते ना किसी सुनो। कोई कहता है वो नहीं कर पाया तो तुम्हारे कोल भी जवाब ये है कि जे वो नहीं कर पाया तो मैं नहीं ये भाई वो नहीं कर पाया, मैंने उसके बाद की लिख दे भाई, उसका मेरा की पा। सो ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਲਫ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਸਕਦੀਆਂ, ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੇਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਥਾਮਸ ਐਡੀਸਨ ਨੇ ਬਲਬ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 999 ਬਾਰ 999 ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਫੇਲ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ जो भी आगे तेनू जो इतना फेल होया तेरा कदे हिम्मत नहीं हुई, कहंदा नहीं मैं बुक डेवलप करती जिहदे विच मैं ये लिखिया कि ये तरीके है इन्हां दे नाल बल्ब नहीं बन सकता। ये ट्राई ना कर मैं करके देख
पॉजिटिव है। तो कहने का भी कहता सीगा कि आ एको तरीका लिखा जितना बल्ब बनना, तो कहता नहीं मैं ये भी गलत करता कि इन्ने तरीके में इस्तेमाल किए ना बन नहीं सकता। तो ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੇਮ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹ 999 ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ, 1000 ਨੰਬਰ ਟ੍ਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਯੂ ਨੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਜਨ ਤੋਂ 100 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਭਾਰੀ ਸਮਾਨ ਚੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਚੱਕ ਲੈਂਦੀ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ 50 ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਸਕਦੇ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਜਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਉਹਦਾ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦੀ ਪਾਵਰ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਿਹਨਤੀ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਆ 2 ਮਹੀਨੇ अंदर बैठ के खाने वास्ते। सर्दी तो बाहर नहीं आता ना, लेकिन माड़ी गर्मी शुरू हो चुकी, सब तो पहला उबार सो अपनी थिंकिंग डेवलप करो, अपने जो भी मोटिव है, जो तुम मोटो लेके चलते पे हो, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੈਲਫ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਨੈਗੇਟਿव ਥੋਟ ਸਾਲਟ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਸੋਚੋ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਆ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਵਰਫੁਲ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਸੱਚੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਂਡਮੈਨ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਲੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਬੋਲਡ ਮਾਰ ਦੇ। ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਟੋਗ੍ਰਾਫ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਦੱਸ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਆਈਡੀਅਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਥਿੰਕਿੰਗ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, तो मैं ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। 90% ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਬਣ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਚਾਚੂ ਹੈ, ਚਾਚੂ ਹੈ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਚਾਚੂ ਕਿਉਂ ਬਣਾ? ਮੈਂ ਭਤੀਜਾ ਵਧੀਆ ਬਣ ਕੇ ਖਾਵਾਂਗਾ ਨਾ, राइट? मैं प्यो अच्छा है या नहीं है, तो फिर मैं मुंडा मैं मुंडा अच्छा बन के खाऊंगा। जब मुंडा अच्छा नहीं बन सकिया तो फिर मैं प्यो अच्छा बन के खाऊंगा। तो ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਦਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕਰੋ, ਇਹ ਥਿੰਕਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਰੈਸਟ ਲੈ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਚਿੰਗ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਸਮਝਾਉਂਗੇ ਜਿਸਦਾ ਜੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥੋਟਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਲੇਜ ਵਧਦੀ ਨਹੀਂ। कोई क्वेश्चन किसी का या कुछ जिन्होंने सहमति ना हो इस बात के नाल ठीक है नाल कुछ अपना अलग राय देना चाहते हो तो दे सकते हैं। सबसे पहले हमारे सामने सबसे पहले हमारा फैमिली रहती है, क्योंकि अगर हम कुछ भी वर्क करने आगे निकलते हैं ना, सबसे पहले फैमिली को ही हमारे मतलब कि उनकी जो पर्सनल थिंकिंग है वो ऐसे ओल्ड रहती है। हाँ, तो हम सबसे पहले हमारे जो नेबर ही होते हैं वो ये कहते हैं अपने बच्चों को ये मत कराओ, वो मत कराओ, उससे कुछ नहीं होगा। सबसे पहले हमारे मतलब कि हमारे जो भी सक्सेस की बात हो, पूरी फैमिली हमारे साथ है। और सहमत हो आप लोग इस बात से? सबसे पहले पेरेंट्स को रोक देते हैं। क्यों रोकते हैं? हमारी पति पता बोलो क्या सोचती है, वो इसलिए रोकते हैं क्योंकि वो साथ हैं, वो कहते हैं कि ना उसको तो ये कर रहा, तुम लोग ऐसे क्यों नहीं हो? वो कर रहे, तुम लोग ऐसे क्यों नहीं? हम चाहे अपने जितना मर्जी पैसे के सामने लगे रहते हैं, वो ज्यादातर ये गर्ल्स को बोला जाता है। बॉयज इसलिए उनको पूछो। नहीं कोई बोला है Boys- गर्ल्स से ना वैसे कोई पैसे ज्यादातर नहीं ये ना शुरू करो। मैं पता कितना बर्दाश्त करना पड़ता है ना, ये तो अलग लाइन चली जाएगी। भाई जो सहमत है इसका तो ये इधर सुनना पड़ता है, सुनना नहीं पड़ता।
नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मसला क्या है कि वही कहा ना कि मैंने सबसे पहले लिखे वो लास्ट में एक बात रखी है, वो ये रखी है कि अगर हम अच्छे डॉटर या सन नहीं बन सकते तो पेरेंट तो अच्छे बन सकते हैं ना। आप कह रहे हो, अब एक बताइए मेरे को बात, पेरेंट्स हर चीज के लिए या जो चीज उनको गलत लगती है उसके लिए रोकते हैं ना। अब यहां पर एक हम कहते हैं कि कम्युनिकेशन गैप निकले, जनरेशन गैप लगा लो। एक चीज की छोटी सी एग्जांपल दूंगा, ये एग्जांपल्स में रहेगी। अगर किसी और की गर्ल्स लड़की घर से भाग गई और उन्होंने कहा कि आप रात को लेट नाइट आप बाहर भी जाओगे, तो उनको डर है कि यार मेरे बच्चे साथ ये गलत ना हो जाए। तो गलत कहां हुआ, पेरेंट्स कहां गलत हुए इसमें? अगर वो ये कहते हैं बेटा तू डॉक्टरी कर ले, अब तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है, तो वो देख रहे हैं डॉक्टर बनने के बाद अच्छे रिश्ते आ रहे हैं या वो बच्चे की लाइफ सेटल है, कल को किसी के डिपेंड नहीं होगा। आज तक आपको पता है डिवोर्स रेट कितना बढ़ता जा रहा है, तो वो गर्ल्स के लिए भी यही चाहते हैं। और मैं एक बात तो यहाँ पर लड़कों की बता दूं, और जितना प्यार माँ बाप गर्ल्स को करते हैं, जितनी केयर उनकी करनी और करते हैं, उतनी उनकी नहीं करते। समझे बात को? तो ये बात हम लोग इस बारे में करते हैं। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, डिफरेंस बिटवीन बॉयज और गर्ल्स का, कि यहाँ पर पेरेंट्स की थिंकिंग कहाँ आती है। हम लोग घरों में खाना बनाते हैं, जो रोटी होती है उसको एक बॉक्स में रखते हैं, कवर करके रखते हैं या खुली छोड़ देते। आप लोगों ने ये एग्जांपल्स बहुत सुनी है, व्हाट्सएप पे तो बहुत ज्ञान मिलता है कि एक सुनार है, वो हीरे को एक पोटली के अंदर रखता है, छुपा कर रखता है, तिजोरी के अंदर लोग करके रखता है, क्योंकि उस हीरे की कीमत उस जोड़ी को भी पता है और आसपास दुनिया को भी पता है। उसके ऊपर जब काम किया जाता था बहुत हल्के हाथ से किया, एक क्रैक ना आ जाए। और लोहे को कैसे पीटा जाता है गर्म कर करके, सबको पता ना, कैसे गर्म कर करके, और उसको कभी तिजोरी में नहीं रखा जाता। और जितनी मजबूत चीजें, जितनी मीनार वगैरह जो भी है वो लोहे से बनाई जाती है, सबके अपनी अपनी है। लोहे को गर्म क्यों किया जाता है? शेप देने के लिए। तो उसको इतना गर्म क्यों किया जाता है, या उसको क्या नाम है इतना आसानी से क्यों ढाला जाता है? क्योंकि सोना नरम होता है। हम जो बॉयज की बात करते हैं ये थोड़े सख्त मिजाज के होते हैं, इनको लाइन पे लाने के लिए सख्ती की जाती है, पर ये जो होते हैं वो एक शहर का काम करते हैं, जो पूरे परिवार को अपने नीचे संभाल रखते हैं। जब कल को कोई बात बाहर की तरफ से कोई भी उंगली होती है तो सबसे आगे ये बॉयज खड़े होते हैं, चाहे वो अपनी बहन हो, अपनी वाइफ हो, अपनी माँ बाप हो, कुछ भी हो, परिवार हो। अगर एक नंबर काम या 2 नंबर काम हो तो वो करने से हिचकिचाते नहीं है। तो इसीलिए माँ बाप उनको डांट के भी कर लेते हैं, उनको कहीं जगह परमिशन भी दे देते हैं, चलो कोई बात नहीं, ये कल को करेगा। लेकिन गर्ल्स के लिए वो हमेशा प्रोटेक्टिव रहते हैं और रहना भी पड़ता है। मेरे से बेहतर आप समाज में जानते हो, माँ बाप कभी भी, हम भी इंसान हैं, देखो मैं ये नहीं कहता कि मेरा बच्चा गलत होगा, नहीं, पर जो इस लाइफ ना, वो अपने डायलॉग में हमेशा बोलता रहता हूँ, कोई सास भी कभी बहुत ही, तो माँ बाप भी कभी बच्चे होते हैं, वो दुनिया देख के ही बड़े हो गए। आपको लगता है दुनिया बदल गई है, पर वो बदलाव सिर्फ आप ही देख रहे हो क्या? वो भी देख रहे हैं। वो इसलिए चाहते हैं, उनको लगता है, हमेशा हर माँ बाप को लगता है कि हमारा बच्चा इनोसेंट है। एक चोर की माँ को भी लगता है कि उसका बच्चा मासूम है। तो
तो फिर आप तो पहले ही सारे फ्री हो। तो अगर वो माँ बाप ये सोच रहे हैं आपके बारे में, उनकी थिंकिंग यहाँ पर है कि हमारा बच्चा ये चीज कर रहा है तो शायद सक्सेस हो जाएगा, तो ये जो चीज है ये उनकी गलत नहीं है। पेरेंट्स को कभी भी आप लोग पहले तो अपने माइंड से निकाल दीजिए गलत। दूसरी बात, अगर वो आपको किसी काम के लिए रोकते हैं तो वो डर रहे हैं, ये उनकी थिंकिंग चेंज हो रही है। तो अब यहाँ पर बात आती है पावर की, अभी पावर ऑफ थिंकिंग ना, अब उनकी थिंकिंग जो होती है वो नेगेटिव पे जाती है, उनकी नेगेटिव पावर बढ़ रही है और आपकी पॉजिटिव है। अब आपका काम यह बनता है कि उनकी नेगेटिविटी को दूर करना। अब वो कैसे करेंगे ये आप लोग बस सोचना। डेवलपिंग आपकी थिंकिंग होनी चाहिए। आप पहले ये समझो कि अगर पेरेंट्स की जगह पे आप हो, जिस दिन सोचना शुरू कर दोगे ना ये, उस दिन ना पेरेंट्स की कोई बात चुभेगी आपको, ना कोई बात गलत लगेगी आपको। क्लियर? तो अगर वो आपको कह रहे हैं तो पहले ये देखिए, ये नहीं वो कभी भी कहेंगे कि तुम, अगर वो ये कह रहे तुम नहीं कर सकते, तो ये भी यही बात करने का मौका है ना हमसे, मम्मी पापा वाई का मैं क्यों नहीं कर सकती ये बात को, ऐसा क्या है, उसकी लड़की से नहीं हुआ तो मैं तो कर सकती हूँ, मुझे मौका दो, मुझे करने दो, तो बात करने से बात चलेगी ना। और रही बात जो आपको ठीक लगता है, ये जरूरी तो नहीं कि वो ठीक ही हो, आप लोग बता दो कुछ भी। हमें पेरेंट्स की बात ना बहुत देर बाद जाकर समझ आती है। हम लोग शायद उस कंडीशन में पहुंच चुके हैं कि हमें सब समझ आती है, आप लोग पहुंच जाओगे। और कोई क्वेश्चन इसमें ओके इस बारे में? ठीक है, नेक्स्ट। देख लो, कुछ पूछ लो, अपन तो काम करके आए होंगे हैं। कोई क्वेश्चन? ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਵਰ ਆਫ ਥਿੰਕਿੰਗ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ ਐਂਡ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ ਰੱਖਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ % ਚਾਂਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਹੀ ਜਾਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਸਰ ਜੀ ਕਿ ਬਈ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੇ ਚਾਂਸ ਹੈਗੇ ਹੈ। जैसे नेगेटिव थिंकिंग लेके चलिए तो फिर तो काम ही नहीं करांगे, फिर तो स्टार्टिंग ही नहीं हुई। मैं थिंकिंग बना ली कि मैं गड्डी ड्राइव नहीं कर सकता, तो फिर मैं चलाना, मैं स्टार्ट ही नहीं करांगा देवी। पर जे मैं थिंकिंग ये बना ली कि मैं कर सकता हाँ, तो हो सकता है मैं जितने 10 दिन लगने हैं उत्थे 15 दिन लग जाओगे, 20 दिन लग जाओगे, महीना लग जाएगा, 2 महीने लग जाओगे। बट मैं विचार बना लिया, थिंकिंग बना ली कि मैं कर सकता हूं। नैगेटिव थिंकिंग ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਟਾਪ ਕਰਤਾ। ਜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਹਿਮਾਲਿਆ ਪਰਬਤ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਐਵਰੈਸਟ ਚੋਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਚੋਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਈ। ਪਰ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, तो वो नहीं ना, पर वो तोड़िया पे ये सोच के से ना कि मैं कर सकता हाँ। सो सिंपल चीज ये है कि एक दी गारंटी किसी चीज की नहीं होंगी, बट जिन्ना चਿਰ ਅਸੀਂ पॉजिटिव नहीं होंगे, पॉजिटिव थिंकिंग है उतना चਿਰ ਆਪਾਂ काम ही नहीं कर सकते। ठीक नहीं है? ਅਸੀਂ मैं जो टीचर बनया, ਅੱਜ मैं जो कुछ ਤੁਹਾਡੇ सामने बोल रहा समझ आ गया? Yes, sir. 2003 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਟੀਚਰ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਵਰਡ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਪਤਲਾ ਸੀ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਮੇਰੀ ਏਦਾਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਬਟ ਟੀਚਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਖਾਇਆ ਮੈਨੂੰ, ਟੀਚਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ 100% ਦੇਣਾ, ਆਈ ਕੈਨ ਡੂ। और इस समय लुधियाने का सब तो बहुत इंस्टीट्यूट, सब तो बस उस जिला पढ़ता पाया वो रॉयल कंप्यूटर कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ता। लेकिन हाँ
ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੋਬ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਫਰਮ ਲਈ ਜੋਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਟੌਪ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਤੁਰੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਚ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸੀਗੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਕ ਨਾਮ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਦਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ APJ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਜੀ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਸੁਣ ਵੀ ਲਓ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਲਾਈਫ 'ਚ ਬਣ ਵੀ ਲਓ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਕਸੈਸ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਲਾਮ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਕਸੈਸ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਥਿੰਕਿੰਗ ਇਹ ਬਣਾ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਥਿੰਕਿੰਗ ਬਣਾਣੀ ਹੈ, दुनिया पे राज करना। जो दुनिया पे नहीं कर सके तब तक देश के राज हो चुका। जो देश के राज हो सका तो अपना राज्य कितने नहीं गया, अपने राज्य से नहीं हो सका तो सिटी, जो सिटी से नहीं हो सका था मोहल्ला, और मोहल्ले में नहीं हो सका तो गली, और गली भी नहीं हो सकी तो अपना घर तो है ना यार। आज तक जिन आदमियों ने लाइफ में सक्सेस अचीव की है उन्होंने निगाह वहां रखी, और जो सेटिस्फेक्शन के साथ चल रहे हैं उन्हें निगाह यहां रखी। अगर आपने कामयाबी पकड़नी है, सक्सेस होना है, तो फिर निगाह ऊपर रखे कि वहां पहुंचना है। अगर लाइफ में सेटिस्फाई होना है तो फिर तो जो 10,000 रुपये सैलरी कमा रहा है वो भी सेटिस्फाई है, तो ठीक है यार। महीने में 10,000 की सैलरी आती है, 2,000 रुपये अपने ऊपर, 8,000 रुपये घर में दिए, उसमें से 3,000 रुपये किराया, और बाकी जो 5,000 बचे उसमें राशन भी है, बच्चे की फीस भी है, हम सेटिस्फाई हैं जी, ओके हैं। फिर क्या हुआ? जो पर्सन सेटिस्फाई हो गया वो तरक्की नहीं कर सकता, ये बात है। अगर आपने सक्सेस लेनी है तो आपके अंदर भूख होनी चाहिए, लालच होना चाहिए। अंबानी इंडिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन है, जब जन्म हुआ तब से तो नहीं है ना, तो वो अभी क्या कोशिश कर रहा है? अभी उसकी कोशिश क्या है, उसकी भूख क्या है? खा तो वो भी रोटी रहा होगा और क्या खा रहा होगा। जितना उसके पास पैसा है, अब तो चाहे साथ उसको कुछ भी ना करे तब भी है, लेकिन नहीं, उसकी भूख क्या है कि मुझे दुनिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन होके मरना है। तो हम उसे गलत कहें तो गलत तो नहीं है, एक उसका मोटिव है, उसका अच्छी, उसके लिए वो दिन रात काम भी कर रहा है, उसकी फैमिली काम कर रही है, तो आप भी करो। अगर क्वेश्चन यहां बनता है कि सेटिस्फैक्शन जरूरी है या सक्सेस जरूरी है या अपना गोल जरूरी है, तो ये क्वेश्चन यूजलेस रहेगा आपका। आपके लिए क्या जरूरी है ये आपको पता है। अगर मुझे सिर्फ बच्चों को अपने सेल्फ की देखना था तो मैं एक इंस्टीट्यूट खोल के बैठ गया था, उसमें पढ़ा लेता। पर मैं ये चाहता था कि मैं जिस ब्रांड के साथ में काम करूं उस ब्रांड को कम से कम लुधियाने वाले तो सारे जानते हो ना यार। अब हमने अगर 10-15 साल लगाए तो अब कम से कम ये है ना, आज आपका रिजल्ट आ रहा है। अगर हम जो पहला तरीका इस्तेमाल कर रहे थे, लाइक नॉर्मल आपके साथ बता दिया, एक फाइल आ गई यहाँ पर, उसमें आपका रोल नंबर लिखा है, पास फेल ये चला, तो वो तो नॉर्मल था ना। नेक्स्ट टाइम हमने उसका और डेवलप किया। इस बार आप देखोगे, आप खुद ही कहोगे कि वाकई रोल वाले कुछ काम करते हैं, तो हम लगातार उसके ऊपर, उसे डेवलप करने के ऊपर लगे रहते हैं। और भी क्वेश्चन किसी का? पूछ लो पढ़े नाम बच्चे जाना, फिर अपना फिर खत्म करिए, 4 बज गए ने। किसी कोई क्वेश्चन तो उसे मुझे पूछ लो। लेवल तक पूछना पड़ता है।
हैं? पूछने के लिए सब सोचना पड़ता है कुछ। सोचते हैं नहीं सर, सोचते हैं सर, अलग अलग सोच जाती है सर, कुछ कंफर्म नहीं पता है क्या बोले। नहीं, जो आप बोलोगे हम वही बोलेंगे। है कुछ माइंड में? सर वैसे सर कई लोग कहते हैं कि बस सोचता रहता है, कुछ करता नहीं है, तो सर ये सही है कि सोचना ही रहना चाहिए, बस काम नहीं, करना अगर चाहिए। आप लगातार से सोचते ही रहते हो तो वो तो गलत है। जी सर, काम उतना सोचो ना। और जब सोच लिया, अच्छा ये तो यूजलेस सोच बातें होती हैं जो आप लगातार सोचते रहते हो। मैंने कहा ना, मैंने 2003 में सोचा था तो उस पर काम शुरू कर दिया। अब अगर आप सारे ही सोचते रहते हो और लगातार ही सोचते रहते हो तो फिर तो वो करेंगे नहीं। समझ गया बात। हाँ, तो जितना सोच रहे हो उसके लिए काम कितना शुरू किया वो जरूरी है। हाँ सर, मैं सोचता हूँ, सारा दिन रहता हूँ, लेकिन मैंने इतना काम भी शुरू कर दिया है। मैंने गाड़ी चलाना सीखना था, अब मैं कम से कम मैं साइकिल चलाने लग गया। तो कुछ शुरू तो करो। हाँ, सोच रहे हो कि एरोप्लेन चलाएंगे और हम एरोप्लेन के बारे में या हम गूगल पर सर्च भी नहीं करते, देखते भी नहीं, आज तक मैंने ये नॉलेज ली, तो फिर तो हम लगे ना, लगता सोचने से कुछ नहीं होगा। मैं सोचना चाहता हूँ बहुत टाइम से कि मैं अमेरिका में जाकर राष्ट्रपति बनूं और यहाँ पर मैं लोगों को स्पीच नहीं देता, तो पॉसिबिलिटी नहीं ना कहते, ठीक नहीं है। और कोई क्वेश्चन किसी का? कोई भी जी थिंकिंग बनती है, वो थिंकिंग कितों बनती है? ज़्यादातर तो जी इन्फॉर्मेशन सानू मिलती पई है और लोगों को मिलती पई है कि तुसीं करना की है, आप तो कुछ भी डिसाइड नहीं करते। तो जी भी आप कोई काम करते पे हैं या फिर करना चाहते हैं या फिर कर रहे हैं, वो सारी लोगों की इन्फॉर्मेशन है जी सानू मिलती पई है, तो वो रिलेटेड आप काम करी जा रहे हैं। कहते जेड़ी भी मौके कदे भी मिलते नहीं, बनाने पैंदे। अब मैं चाहता हूं कि अभी आप लोग शाहरुख खान के बारे में सोचें, पर सलमान खान के बारे में बिल्कुल ना सोचें। दबंग फिल्म में उसने एडम पिक्चर लगाई थी ना, देखी थी कि सबने? अगर कमाल की बात यह है कि मैंने आपसे कहा था शाहरुख खान के बारे में बोलना, DDLJ में नहीं पहुंचे अभी तक और आप दबंग में पहुंच गए कि हाँ वो एडम पिक्चर लगाता है। तो ये क्या है, हम कुछ भी कही जाए पर हम जिस तरह का मौका पैदा करेंगे ना उस तरह का है। आपकी थिंकिंग कंट्रोल होती है आप जो देखते हो, जिसको आप फॉलो करते हो, उसी तरह से आपकी थिंकिंग बनती है। एक पर्सन दिन रात YouTube पे सिर्फ एक चीज पढ़ता है कि परमात्मा नहीं है, तो नास्तिक बन जाता है। एक पर्सन लगातार ये वीडियो देखता है कि तब भगवान ने ये किया, तब गॉड ने ये किया, तब ये हुआ, तो वह आस्तिक बन जाता है। ये बात तो वो क्या हुआ, जिस तरह के आपने मौके देखे उस तरह से आपको आपकी थिंकिंग बन जाती है, उस तरह से आप लोग सोचने बढ़ जाते हो, उस तरह की बात करते हो, उस तरह की आप बात लोगों से करते हो। तो माइंड में ये रखता है कि इस मशीन के अंदर, इस दिमाग की वाली जो मशीन है, इसके अंदर आप कौन सा थॉट डाल रहे हो, जैसा डालोगे वैसे थिंकिंग हो जाएगी। तो मेरे अकॉर्डिंग तो यह है कि हमें थिंकिंग बनाई नहीं जाती, थिंकिंग हमारे ऊपर जो हम देखते हैं उससे डेवलप होती है ऑटोमेटिक। आप लोग नहीं क्या करते, आप लोग मान लेते हैं आप में से कोई पर्सन है जो टीचर बनना चाहता है या अपना इंस्टीट्यूट वगैरह खोलना चाहता है, आपकी थिंकिंग कहां से है? रॉयल से ही आई। रॉयल से आई ना, तो आपने देखा क्यों आई? आपने देखा रॉयल वाले बिजनेस सेंटर है, सेंटर में देखे, इधर की हमने नॉलेज देखी है कि नॉलेज हाँ। कैसी है। तो बात वही ना, तो ये डेवलप कैसे होता है? मतलब कि आपने देख के ना, जब घर बैठे थे, जब तक कंप्यूटर सेंटर शुरू नहीं किया था, तब तो दिमाग में कभी नहीं आया मैं कंप्यूटर टीचर बनूंगी। समझे? और कुछ क्लियर है? ये सब ओके है? और कोई क्वेश्चन किसी का? आपको तो कुछ लेट हो गया, ये जल्दी आ गई, एक क्लास में आई अंजलि मैम, तो कुछ पूछना नहीं? हाँ जी, सहमत हो? चलो
ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਗੱਲ ਐਗਰੀ ਕਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਬੋਲਣਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਦੈਟ ਦਾ ਪਾਵਰ ਆਫ ਥਿੰਕਿੰਗ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ, ਸਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟੌਪਿਕ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੌਪਿਕ ਪਾਵਰ ਆਫ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈ ਕੈਨ ਡੂ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦੀ ਪਾਵਰ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣੇ ਗੋਲ ਸੈੱਟ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਐਟਲੀਸਟ ਉਸ ਤੋਂ 1% ਸਟਾਰਟ ਵੀ ਕਰੋ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਥੱਲੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 4 ਨੰਬਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ 6 ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ 10 ਹੁੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟਾਫ ਤੇ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜੋ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਟੀਮ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੀ ਭੁੱਖ ਹਜੇ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲਾਈਫ 'ਚ ਸਕਸੈਸ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਰਹੋ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਛੱਪੜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਛੱਪੜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਵਗਦੇ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਗੰਦਗੀ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਵਗਦੇ ਦਰਿਆ ਬਣੋ, ਛੱਪੜ ਨਾ ਬਣੋ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।